भाई गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका। सेमीकंडक्टर्स का लेक्चर नंबर 3 शुरू होने वाला। लास्ट लेक्चर में हमने एनर्जी बैंड्स किए थे, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, मेटल्स को, इंसुलेटर्स को, सेमीकंडक्टर्स के अलग अलग टाइप को हमने रिप्रेजेंट किया था। ऑल्सो वी सॉ Ni square is Ne into NH. Ni is intrinsic carrier concentration, Ne is the number of electrons per unit volume, NH is the number of holes per unit volume. Also हमने देखा का N या P is electrically neutral and इसी बेसिस पे हमने दोनों को जोड़ दिया और एक PN junction बना दिया. So this was the PN junction, a very very lovely phenomenon. I hope you've gone through that many times. Any problem so far in PN junction? ये P region, ये N region, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स P में और N टाइप रीजन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे ही ये सिचुएशन खड़ी होती है तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम N रीजन टू P रीजन और इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं एंड धन 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 यहां भी आ जाते हैं इन जगहों से। This process of electrons going from N to P is called diffusion. I hope you remember electron diffusion जो है वो from N to P होता है। एंड अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन क्या छोड़ जाता है? होल छोड़ जाता है क्या? नहीं, नो सर। क्या छोड़ जाता है? पॉजिटिव आयन। And due to the formation of positive ions here, electrons here, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है which is from positive to negative इस तरफ, and this electric field prevents the further going of electrons from N region into P region. इनको रोक देता है। बट इस P टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाभ उठा के इधर की ओर आ जाते हैं। तो इस डायरेक्शन में होता है व्हाट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। यू रिमेंबर दिस? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन इज फ्रॉम N to P of electrons and drift is from P to N. At one point diffusion और drift दोनों इक्वल हो जाते हैं, net current becomes zero and as a result बीच में ये जगह बन जाती है। मैं बाकी सब कुछ उड़ा देता हूं, ये उड़ाना ही पड़ेगा यार, I hate this उड़ाना, बट फिर भी। So let me make it again. ये जो बीच का रीजन बन गया, यहां इलेक्ट्रॉन्स था, यहां इलेक्ट्रॉन्स था, मैं तीन तीन ही बना रहा हूं टू कट आउट दी एग्जैजरेशन। और यहां पे पॉजिटिव आयंस थे एंड यहां इलेक्ट्रॉन्स। ये जो रीजन बन चुका है which is depleted of its majority charge carriers is called depletion region. I hope you have gone through all the points chronologically, and due to accumulation of negative charges here, this region has a net negative potential. Due to accumulation of positive charges here, this region has a net positive potential, and this potential difference is called VB या barrier potential. Alright, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है फॉर द डायोड। अब इसको एक्सटर्नल बैटरी लगाएंगे तो ये फॉरवर्ड या रिवर्स बायस होगा। तो मैं एक डायग्राम के जरिए ये दोनों कंडीशंस को आपके सामने रखता हूं। ये P region, I hope you remember forward bias मतलब when P is connected to positive and N is connected to negative of the external battery. This is forward bias. ये आपका डिप्लीशन रीजन का बैरियर पोटेंशियल है, ये रहा। एंड द फर्स्ट स्टेप वी राइट इज दैट द electric field due to barrier potential and electric field due to external battery are in opposite directions. As a result,
the net electric field across the junction goes on decreasing, and due to that the potential barrier also goes on decreasing, the width of the depletion region also goes on decreasing. तो ये डिप्लीशन रीजन विड्थ घट जाता है, बैरियर पोटेंशियल भी घट जाता है. इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप, बहुत सारे बतेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप भरपूर है यहां पे, धमाधम क्रॉस कर जाएंगे इनटू पी रीजन, एंड जैसे ये इधर आ जाएंगे यहां से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे attracted by the positive potential of the battery, and thus a current will flow through the circuit. This current is called forward current. In short, during forward bias, current flows through the circuit, and forward current, I told you, IF is of the range of milliamperes. Alright, so milliampere range का अच्छा सा current flow होता है. Resistance of the diode during forward bias is small. So ये है forward. फिर आता है reverse. Anybody telling me what is reverse bias? Definition of reverse bias: when P is connected to negative and N is connected to positive of an external battery. We got a large forward reverse bias here, and ये तुम्हारा barrier potential, ये electric field due to barrier potential, and the electric field due to external battery, if you see, both are in the same direction. As a result, the net electric field across the junction goes on increasing. As a result, the barrier potential also goes on increasing. एंड बेचारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतनी बड़ी दीवार हो गई, अब वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे. सो नो इलेक्ट्रॉन्स विल गो फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप, यू नो, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का लाभ उठा के दे विल क्रॉस ओवर इनटू द पी टाइप, एन टाइप, एंड दे विल कंस्टिट्यूट अ स्मॉल करंट व्हिच इज कॉल्ड रिवर्स saturation current. This IR is of the order of microampere. You can say it is nearly negligible as compared to forward current. So during reverse bias, a very small current of the order of microampere is constituted. You can say it is nearly, current is nearly zero, बहुत कम होता है, nearly कुछ नहीं होता, you can consider it like. So during reverse bias, no current flows, nearly no current flows through the diode, negligible current you can call it. So during forward bias, current flows, diffusion हो रहा है, diffusion की वजह से current हो रहा है. During reverse bias, very less current flows, negligible current flows, drift की वजह से current flow हो रहा है. So in forward bias, current constitution is due to diffusion of charge carriers. In reverse bias, current is constituted due to drift of the charge carriers. एंड हमने लास्ट टाइम एक ग्राफ भी बनाया था जो फॉरवर्ड और रिवर्स को सिग्निफाई कर देता है एक ही ग्राफ में. बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्राफ बना था, और उसको फिर से एक बार दोहरा देता हूं मैं. दोनों को एक ही प्लेन में बना दिया था हमने. फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था. So this was the forward voltage, and it was like, whoo, this is forward current which is milliamp, and जैसे ही तुम्हारा ये करीबन 0.7 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हो जाता है तो करंट अचानक से बढ़ने लगता है. ऑन दी अदर हैंड ये रिवर्स वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड वोल्टेज, और ये रिवर्स करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर. You can see that for a very large reverse voltage also the current is nearly negligible, करीब 1 माइक्रो एम्पियर या उसके बाद. एंड अगर आप बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो जैसे 5 वोल्ट, तो you will see that the current drops drastically. This region is called breakdown region. Okay, diode has broken down. तो हम यूजुअली इस रीजन में नहीं चलाते, इसी रीजन में चलाते हैं और इस रीजन में चलाते हैं डायोड को. This is the active region of the general purpose PN junction diode. So if I were, अच्छा मैंने लास्ट में आपको सिंबल भी बताया था PN junction diode का. So
ये base of the triangle is P and the Dundee is N. Remember, base of the triangle being P and the Dundee being N. This is the symbol for a PN junction diode. So in summary, if I were to summarize all this, whatever I have said, let me put that down as a note. So what is the note? Please take this note very carefully. During forward bias, current flows through the diode. So diode is said to be on or conducting. The diode is conducting, it's constituting current, or you can also call it short circuit. Arthat, if I put the diode, this is the diode, this is P, this is N, and I put it to forward bias matlab P to positive, N to negative of the battery, then it will behave like, you know, ये diode short circuit जैसा behave करेगा. In short, it will allow current to flow through the circuit. So you can, as you can see here, current flows IF through the diode. मस्त conducting हो रहा. So diode is said to be on or conducting, or the best is short circuit. On the other hand, during reverse bias, nearly negligible current, a very small current, nearly negligible current flows through the diode. So diode is said to be off, और जैसे यहां पे फॉरवर्ड बायस में डायोड वाज ऑन, रिवर्स बायस में डायोड इज ऑफ, मतलब ऑफ नहीं हो गया, और नॉन कंडक्टिंग और ओपन सर्किट. सर अर्थात क्लियर है एकदम, स्प्राइट जैसा कामकाज है. ये तुम्हारा रिवर्स बायस हो गया, P टू नेगेटिव, N टू पॉजिटिव. एंड अगर तुम रिवर्स बायस लगाते हो सिचुएशन को, तो डायोड से करंट फ्लो होगा नहीं, नियरली नेग्लिजिबल, यू कैन से नहीं हो रहा, एंड एज अ रिजल्ट यू कैन कंसिडर डायोड टू बी ओपन सर्किट. कैन यू सी दिस? नो करंट इज फ्लोइंग, डायोड कैन बी कंसिडर्ड टू बी ओपन सर्किट. खुल जाता है डायोड, कोई करंट फ्लो नहीं होता. These two diagrams will be of utmost importance when I talk about the application of a PN junction diode. Now PN junction diode तो देख लिया, उसका फॉरवर्ड बायस देख लिया, रिवर्स बायस देख लिया, ये आइडिया भी देख लिया. तो अब फाइनली ये क्वेश्चन आता है कि ये PN junction diode यूज कहां होता है? We use the PN junction diode in a rectifier circuit. Now what is a rectifier circuit? Acha people, kindly draw these two diagrams in your book. I'm going to take this off. So during forward bias, diode is short circuit. During reverse bias, diode is open circuit. Alright, देख लिया, उड़ा देता हूं मैं. So rectifier की बात चल रही. You know a circuit, let me first define a rectifier. A circuit that converts AC into DC, alternating current into direct current, is called a rectifier. So let us first define a rectifier. A circuit, an arrangement that converts alternating current AC. I'm sure you still remember AC sinusoidal, to direct current DC, is called a rectifier. ओके, दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं. पहला तो हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर. सो लेट अस फर्स्ट लुक एट व्हाट इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर. हाफ वेव रेक्टिफायर यूजेस अ सिंगल डायोड. सो हाफ वेव rectifier, for my convenience I call it HWR. Okay, this is the circuit out here. मैं एक ट्रांसफॉर्मर यूज कर रहा हूं.
जिसके जरिए मैं AC इनपुट दूंगा. दिस इज AC input and the symbol for a transformer. This is the primary of the transformer. और इसके अक्रॉस मैं सेकेंडरी में, ये सेकेंडरी हो गया, एंड यहाँ पे मैं ले रहा हूं और यहां लगा दूंगा मैं एक सिंगल डायोड, PN जंक्शन डायोड. ध्यान दीजिएगा, ये उसका P है, ये उसका N, एंड हियर इज द लोड. सर ये लोड क्या है? वो जो हम रोज लेते हैं वो लोड होता है? नहीं, वो नहीं होता है. एंड यहां पे आई गेट माई DC आउटपुट. यू नो, लोड वो चीज होती है जिसके अक्रॉस आउटपुट लिया जाता है. अगर तुम लोड ना लो तो तुमको ये दो टर्मिनल्स के अक्रॉस सिर्फ EMF मिलेगा, बट अगर तुम लोड लो तो उसके अक्रॉस तुमको आउटपुट मिलता है. सो कोई स्विच के अक्रॉस लोड होता है, पंखा. यू नो, तुम स्विच चालू करो, पंखा घूम रहा है तो तुमको पता है कि ये चल रही है, सो सर्किट चालू है. सो लोड है जिसके अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ लोड रेजिस्टर. सो दिस इज RL, अ लोड रेजिस्टर. नाउ एक ग्राफ के जरिए, एक डायग्राम के जरिए इसका ऑपरेशन समझाऊंगा मैं आपको. दिस इज माय इनपुट वोल्टेज, AC इनपुट, एंड एवरीबॉडी नोज AC इनपुट. ओके, एंड इधर मैं अपना आउटपुट ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा. दिस इज विद टाइम. थोड़ा और खींच लो सर, खींच लगते हैं जी. यहां तक ले लिया मैंने. Okay, all right. This is my DC output which I am going to get across the load resistor. Now ये डायग्राम तो ठीक है? हाँ ठीक है. Okay. Now first things first. ये AC इनपुट, सर ट्रांसफॉर्मर क्या करता है भाई? ट्रांसफॉर्मर, ये AC इनपुट तो 220 वोल्ट होगा यार. अगर तुम इतना बड़ा इनपुट इसको देगे तो उड़ जाएगा. तो हम सेकेंडरी के जरिए इस वैल्यू को काफी कम कर देते हैं और फिर देते हैं. पर है ये AC ही है, ये भी AC ही है. तो AC की पहली हाफ साइकिल सपोज यहां आई. यू नो, दिस इज अ पॉजिटिव हाफ साइकिल. व्हेन पॉजिटिव इज गिवन टू P, कैन यू सी दिस पॉजिटिव हाफ साइकिल इज गिवन टू द P एंड ऑफ द डायोड. व्हेन पॉजिटिव इज गिवन टू P, डायोड फॉरवर्ड बायस होता है या रिवर्स बायस? फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करता है या नहीं करता? करता है. सो करंट फ्लो करता है तो हमको आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा. सो दिस विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट एंड हमको लोड रेजिस्टर के थ्रू आउटपुट मिलेगा. सो ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट मिल गया हमको. So here D is forward biased. अब सेकेंड हाफ साइकिल आई, नेगेटिव हाफ साइकिल. ये चला गया नेगेटिव हाफ साइकिल. When negative is given to P, डायोड फॉरवर्ड बायस के रिवर्स बायस? रिवर्स. करंट फ्लो या नॉट फ्लो? नॉट फ्लो. आउटपुट या नो आउटपुट? नो आउटपुट, क्योंकि ये तो खुल गया. नेगेटिव दिया है P को तो डायोड तो खुल गया, अब कोई करंट फ्लो होगा नहीं. तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दरमियान तुमको लोड के अक्रॉस कोई आउटपुट मिलेगा नहीं. सो दिस डायोड D is reverse bias. Again when positive half comes to P, again diode is forward bias. शाबाश, करंट फिर से फ्लो करेगा. एंड जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई, diode is again reverse bias, no current flows through the diode. So you can see in one whole cycle of AC, only during positive half cycle we are getting output across the load. During the negative half cycle there is no output across the load, no current is flowing across the load. So for one full cycle of AC we are only getting half cycle of DC. हाँ, यहां पे कुछ लोग मेरे को लेंगे, सर ये DC है क्या?
सर आज तक तो ऐसा डीसी नहीं देखा, अब तक तो ऐसा डीसी देखा था आपने। दिख क्या हूं, ये डीसी है, कांस्टेंट वोल्टेज। अरे एसी और डीसी का सबसे बड़ा फर्क यही है, एसी इज पॉजिटिव हाफ नेगेटिव हाफ, यू नो, डायरेक्शन चेंज होता है। यहां पे क्या आउटपुट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है? नहीं, एक ही दिशा में है, जो भी है एक ही दिशा में है। आई नो इट इज नॉट प्योर डीसी, बट इजंट इट ओनली इन वन डायरेक्शन? यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डीसी। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग टाइप डीसी, क्योंकि ये पल्सिस के फॉर्म में है। So this is called pulsating type DC voltage. So for one full cycle of AC, you have got only half cycle of DC. That is the prime reason why this is called a half wave rectifier. Single diode सिर्फ आधी साइकिल को रेक्टिफाई कर सकता है. That is why a single diode is also used as a half wave rectifier. इसी बात के लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए मैं ये पूछता हूं, अगर मुझे ये दोनों पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करना है, दोनों में आउटपुट चाहिए, तो मुझे कितने डायोड यूज करने चाहिए? दो। तो आओ, एक से भले दो। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर में कोई इश्यू? काफी आसान चीज है। ओके, तो अब मैं कर रहा हूं विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाफ वेव रेक्टिफायर, इट इज कॉल्ड अ फुल वेव रेक्टिफायर एंड आई एम गोइंग टू यूज टू डायोड्स. सो लेट्स यूज टू डायोड्स. हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ आधी साइकिल के लिए आउटपुट मिलता था. यू गेट आउटपुट ओनली फॉर हाफ साइकिल ऑफ एसी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ हाफ वेव रेक्टिफायर. ऑन द अदर हैंड, नाउ वी आर गोइंग टू गेट दोनों हाफ फुल दोनों साइकिल के लिए रेक्टिफिकेशन मिलेगा. सो दिस इज कॉल्ड अ फुल वेव रेक्टिफायर, FWR. दिस इज एन इंपॉर्टेंट थियरी टॉपिक. ये काफी बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. And as you can see, the diagram shows here, अपना स्टैंडर्ड लेफ्ट साइड का तो फॉर्मेट स्ट्रेट नॉर्मल स्टफ है. This is the primary of the transformer, and here we got your AC input, and this is given to the secondary of the transformer. अब आएंगे डायोड, ध्यान से. ये पहला डायोड जिसको मैं कहता हूं D1, ये उसका P, ये उसका N, और ये दूसरा डायोड सेम तरीके से कनेक्ट किया है, कोई चेंज नहीं है. ये है D2, here P, here N, और इन दोनों को एक साथ मैंने बांध दिया है. सर आउटपुट कहां लोगे? आउटपुट लेंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो, यहां से नहीं लेंगे आउटपुट. ये लोड है, इसके अक्रॉस डीसी आउटपुट है. और सर इसका दूसरा एंड कहां कनेक्ट करेंगे? अरे देखो तो सही, अब दूसरा एंड डालने की, इसका दूसरा एंड कहां घुसेड़ू ये समझ में नहीं आ रहा था. तो मैंने एक काम किया, मैंने ट्रांसफॉर्मर के बीच में एक जगह खोल दी, और यहां से ये जंपर होता है, ये जंपर मतलब इन दो वायर का कोई रिलेशन नहीं है व्हाटसोएवर. मैंने ये वायर को यहां पे डाल दिया है. दिस इज कॉल्ड सेंटर टैप. और इस सेंटर टैप का आइडिया क्या है? इट इज जस्ट टू कंप्लीट द सर्किट. ओके, सो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, करंट को वापस जाने के लिए, रास्ता देने के लिए मैंने इस सेंटर टैप को कंप्लीट किया है. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये सेकेंडरी का ऊपर का भाग, ये सेकेंडरी का नीचे का भाग. अगर ऊपर का भाग में पॉजिटिव साइकिल आएगा तो नीचे के भाग में नेगेटिव साइकिल आएगा, ये याद रखिएगा. ऑलराइट, सो इफ द अपर पार्ट ऑफ द secondary terminal has got a positive cycle, then the lower part of the secondary will get a 180 degrees change negative cycle. Okay, so ये सेंटर टैप खास करके सर्किट को कंप्लीट करने के लिए डाला गया. I'll call some points. I'll call this A, I'll call this B, I'll call this C. Okay, बाकी कहीं पे ABC का नाम निशान नहीं है ना? नहीं. ओके, और वही अपना राइट हैंड साइड पे अपना वही इनपुट और आउटपुट के डायग्राम्स बनेंगे.
छोटे छोटे बना रही हूं क्योंकि जगह नहीं है ना ठाकुर, जगह होती तो लपेट लेते। ये बहुत ही ज्यादा बड़ा कर दिया हमने, पर अब क्या किया जाए है जी, क्या किया जाए। कोनो त्रास नहीं होना चाहिए, सर्किट सही बनना चाहिए। बहुत मजा आएगा, साथ में रहिएगा। सो ये डीसी आउटपुट है। सो ये O/P मतलब आउटपुट है। आप लोग टेंशन में बता रहे थे O/P क्या है। जैसे I/P होता है इनपुट, वैसे O/P होता है आउटपुट। नाउ आर वी रेडी? यस सर। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल इज गिवन टू दिस टर्मिनल, तो बट ऑफ कोर्स उसका मिरर इमेज नेगेटिव हाफ साइकिल इस टर्मिनल पे आएगा। नाउ लुक केयरफुली, पॉजिटिव हाफ साइकिल गिवन टू P ऑफ डायोड D1। बहुत ध्यान से, अगर पॉजिटिव इज गिवन टू P तो D1 क्या होगा, फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड। शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट? शॉर्ट सर्किट। करंट फ्लो या नॉट फ्लो? फ्लो। अच्छा, वो तो हो गया। नाउ नेगेटिव गिवन टू P ऑफ डायोड D2। नेगेटिव टू P मतलब रिवर्स, बराबर ना? इफ नेगेटिव हाफ साइकिल इज गिवन टू P, डायोड D2 विल बी रिवर्स। रिवर्स बायस में ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट? ओ माय गॉड, मतलब ये डायोड खुल गया, खुल गया, ये खुल गया, कुछ नहीं है, ये बंद हो गया, ये खुल गया। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 फॉरवर्ड बायस्ड, D2 रिवर्स बायस्ड। तो मतलब ये नहीं होगा, ये है ही नहीं, और ये बंद हो गया, ये कंडक्ट करेगा एंड अब करंट फ्लो होगा। ध्यान से देखिए इस रास्ते, टिक डिग 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 करंट चल रहा है यहां, ऐसा नहीं तो जंक्शन है, हाँ जंक्शन है, पर क्या यहां से कुछ है? कुछ नहीं है। तो सारा का सारा करंट यहां से अंदर घुसेगा, लोड से होता हुआ यहां आएगा, ऊपर आया, ऊपर आया, सी पे आया। सर सी पे तो ऊपर जाने का रास्ता भी है, नीचे भी है, पर नीचे देखो तो अरे साला ये तो खुला है, तो क्या करंट नीचे उतरेगा? नहीं। तो यहां से होते हुए डिग 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 डिग, ये हमारा सर्किट कंप्लीट। कैन यू सी द ब्लू कलर्ड रूट डायग्राम? करंट गया D1 से A से B से C से D1। सो ये पूरा हमारा सर्किट जो है सो कंप्लीट हुआ एंड हमारा डायोड कंडक्ट कर रहा है और बहुत मजा आ रहा है। ये सी इधर ही लिखना ज्यादा सही है। एंड डू यू अग्री, आउटपुट मिल रहा है? जी मिल रहा है, जी 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 मिल रहा है। सो D1 फॉरवर्ड, D2 रिवर्स। अब नेगेटिव हाफ साइकिल आई श्रीमान, अब नेगेटिव, पहले इसको बना देते वापस जैसा था वैसा। ओके, अब ये हो गया तुम्हारा D2, ये P, ये N। अब ऊपर नेगेटिव साइकिल आई तो नीचे कौन सी साइकिल आएगी जी? पॉजिटिव। नाउ नेगेटिव गिवन टू P, भाई नेगेटिव गिवन टू P तो डायोड D1 फॉरवर्ड या रिवर्स? रिवर्स। ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट? ओपन सर्किट। करंट फ्लो या नॉट फ्लो? नॉट फ्लो। खुल गया है। ऑन दी अदर हैंड पॉजिटिव टू P, आहा, इस बार D2 फॉरवर्ड बायस, ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट? क्लोज सर्किट। करंट फ्लो या नॉट फ्लो? फ्लो, बराबर ना? ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल D1 रिवर्स बायस्ड, D2 फॉरवर्ड बायस। तो अब फॉरवर्ड बायस में D2 में किस तरह का करंट चलेगा? ये रेड कलर की पेन में दिखा था, ये चला करंट,
ये चला यहां आया, पर यहां से तो ये खुला हुआ ही है रास्ता, तो रास्ता घुमाओ, टिंग टिंग टिंग। आपने देखा पहले के हाफ साइकिल में भी करंट ए से बी ही जा रहा था, इस बार की हाफ साइकिल में भी करंट ए से बी ही जा रहा है, मतलब डायरेक्शन सेम ही है बंधु। ये इधर आया, इधर से तो दो रास्ते जाते हैं, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। ये लाल वाला कहां टर्न मारेगा? नीचे नीचे। क्यों ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्या दिक्कत है? खुला है। अरे अरे खुली बातें अच्छी नहीं है बेटा। और तगड़ा गड़ा 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 गड़ा, वो जबरदस्त सर्किट कंप्लीट हो गया। देखा आपने? आर यू सीइंग? वेरी गुड। तो ये दो अलग अलग रास्तों के जरिए पहले हाफ साइकिल में, अच्छा मैं ड्रॉ कर दूं डायग्राम, दोनों का डायरेक्शन सेम ही होने से यहाँ पे D1 रिवर्स बायस, D2 फॉरवर्ड बायस, फिर से पॉजिटिव तो D1 फिर से फॉरवर्ड बायस होगा, ये नेगेटिव D2 फिर से फॉरवर्ड बायस होगा। सो आपने देखा फॉर बोथ हाफ साइकिल्स ऑफ AC you are getting output. That is the prime reason why this is called a full wave rectifier. Alright, for both cycles of DC you get half cycles, you get output cycles for DC, so this is called a full wave rectifier. अच्छा, इस सर्किट डायग्राम को समझ में ले लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं। पहले हाफ में ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा, दूसरे हाफ में ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा। सो हर एक हाफ साइकिल में एक ही डायोड कंडक्ट करेगा। पहली हाफ साइकिल में D1 कंडक्ट कर रहा है, D2 ऑफ है, दूसरी हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट कर रहा है, D1 ऑफ है। ये ब्लू और रेड कलर, ब्लू कलर शोज द फर्स्ट हाफ साइकिल, रेड कलर शोज द सेकंड हाफ साइकिल। एंड इफ यू सी both cycles, both half cycles में current is going from A to B, output is always from A to B, the direction does not change. That is why this is DC. DC मतलब डायरेक्शन नो चेंज, तो नो चेंज हो गया है, दिस इज DC। अच्छा मैं एक बात आपसे बताना पूछना चाहता हूं, एक सिंपल बात, यहां पे आप उसका डायग्राम कंपेयर करो फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का। हाफ वेव में ये हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट, इफ यू रिमेंबर आपको सिर्फ एक पूरी साइकिल के लिए ओनली हाफ साइकिल ऑफ DC मिल रहा था। यू रिमेंबर दिस हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट, दिस इज फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर में जो DC सिग्नल है, DC आउटपुट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? डू यू अंडरस्टैंड? फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में एक साइकिल कंप्लीट होगी? सपोज मेरे इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, जैसे इंडिया में AC की फ्रीक्वेंसी होती है, ये एक साइकिल कंप्लीट होने में 50 हर्ट्ज लेता ही है, बराबर। अब इसमें देखो तो ये एक साइकिल कितने टाइम में, कितने उसमें कंप्लीट होती है? कैन यू सी? टोंग, एक साइकिल, कैन यू सी? ये एक साइकिल हुई, ये दूसरी साइकिल। सो फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, इसकी हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट की फ्रीक्वेंसी AC के फ्रीक्वेंसी जैसी ही होगी। सो आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सिग्नल। जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है उतनी ही इसकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा फुल वेव में देखो तो, कैन यू सी? ये एक साइकिल हो गई, ये हो गई दूसरी साइकिल, ये पहली साइकिल, ये दूसरी साइकिल, ये तीसरी साइकिल, ये चौथी साइकिल। यहां पे ये पहली साइकिल थी और ये दूसरी साइकिल। सो जितना फ्रीक्वेंसी AC का था उतना ही फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट का है। बट यहां पे जितने टाइम में ये एक साइकिल होती है उतने टाइम में आउटपुट की, फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट की कितनी साइकिल हो रही है? 2। सो frequency of full wave rectifier output is double, 2 times the frequency of AC signal। टाइम आधा तो फ्रीक्वेंसी डबल।
ये टाइम को x लो तो अब इसको कितना लगेगा x/2, मतलब टाइम आधा फ्रीक्वेंसी डबल। सो अगर तुम्हारा इनपुट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज तो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा 50 हर्ट्ज। तो फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होगा जी? 100 माय गॉडनेस, 100 क्या कुत्ते बिल्ली, हर्ट्ज ना। हर्ट्ज। ओके, सो प्लीज राइट दिस डाउन एंड लेट्स गो। अच्छा, एक छोटी सी बात और करनी सर, ये मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है यार सर, ये ऐसा डीसी क्या सर, कुछ अच्छा डीसी दे दो यार, कुछ मस्त जिसमें भले ऐसा पूरी तरह ऐसा ना आ रहा हो पर कुछ तो अच्छा आ रहा हो। ओके, जैसे मैंने आपको कहा दिस इज अ पल्सेटिंग टाइप डीसी एंड दिस डीसी contains both type of components, high frequency components, low frequency components। इसमें से इसको सही करने के लिए हमको रेक्टिफायर में फिल्टर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? फिल्टर। पहले आप इसको लिख लीजिए, मैं फिल्टर लगाता हूं। फिर अनवांटेड कंपोनेंट्स को निकालने का जरिया दैट इज कॉल्ड अ फिल्टर। ओके, लिख लिया आपने? ओके, तो let's briefly discuss what is a filter circuit। उसमें ज्यादा कुछ है नहीं फिल्टर सर्किट में। ओके, सो दो टाइप के फिल्टर सर्किट होते हैं। यू कैन हैव अ सीरीज इंडक्टर फिल्टर और यू कैन हैव अ पैरेलल कैपेसिटर फिल्टर। तो हमारे कोर्स में पैरेलल कैपेसिटर फिल्टर है, सो वी कैन यूज अ सीरीज इंडक्टर फिल्टर और अ शंट मतलब पैरेलल कैपेसिटर फिल्टर। तो लेट अस सी, ये तुम्हारा रेक्टिफायर है, ये तुम्हारा एसी इनपुट, दिस इज अ रेक्टिफायर सर्किट। क्या लिख रहा है इंग्लिश में? फुल वेव हो हाफ वेव हो, मैं फुल वेव ही कंसिडर कर रहा हूं। और अब इसके आउटपुट को मैं सीधा लोड को नहीं दूंगा, मैं यहां बीच में एक कैपेसिटर लगा, दिस इज अ कैपेसिटर, और उसके साथ ये रहा आपका लोड। नाउ यू विल आस्क मी सर इससे क्या फायदा होगा, बताता हूं। डू यू नो कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होता है? I'm sure you still remember Xc is 1 by 2 pi nu c, isn't it? Xc 1 by 2 pi nu c, AC में देखा था हमने। अच्छा, DC के लिए nu is 0, अगर nu 0 है तो Xc क्या होगा? Infinite। Do you agree? Xc will be infinite, so it will act like an open circuit। And for AC उसका nu जो है वो फाइनाइट होता है, सो Xc भी फाइनाइट होगा। इन शॉर्ट, ये AC के थ्रू वो कंपोनेंट्स, ये कैपेसिटर के थ्रू वो कंपोनेंट्स चले जाएंगे जो AC कंपोनेंट्स है, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। और जो DC कंपोनेंट है उनके लिए ये कैपेसिटर एक्ट्स एज ओपन सर्किट, तो DC वाले लोड के जरिए चले जाएंगे। तो फर्क क्या पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका, मैं तीनों सर्किट एक में ही डालने की कोशिश करूंगा। ये आपका एसी इनपुट, ये आपका अनफिल्टर्ड डीसी आउटपुट, अनफिल्टर्ड डीसी आउटपुट, जो आपको अंदाजा है इस तरह का दिखता था। पल्सेटिंग टाइप डीसी दिखता था। एंड अब फिल्टर्ड आउटपुट, आउटपुट आफ्टर फिल्टरिंग, filtered DC output across load resistor।
आप देख रहे हैं शुरू तो होता ही है ऐसे, पर जैसे ये नियरली जीरो फ्रीक्वेंसी है, तो जैसे ये आ जाता है ना, वैसे फिर ये वाला जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको कैपेसिटर पास कर लेता है और लोड के अक्रॉस कुछ नहीं आता, फिर वापिस ये वाला आता है, ये फिर से लो फ्रीक्वेंसी, देखा आपने, उसने जो हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है वो निकाल दिया और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो है, ये लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है, उनको पास होने दिया। सो हाई फ्रीक्वेंसी एसी कंपोनेंट्स जो है ना वो बाईपास हो गए कैपेसिटर से, एंड लो फ्रीक्वेंसी डीसी कंपोनेंट्स जो है वो लोड रेजिस्टर में चले गए, एंड दिस इज हाउ अ फिल्टर्ड डीसी आउटपुट लुक्स लाइक। कैन यू सी, ये जो पल्सेटिंग वाला है उसके हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स उड़ गए हैं और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स रह गए, which forms the filtered DC output। ये पावर सप्लाईज में इस तरह के फिल्टर को यूज किया जाता है। Alright, so this is what is a filter circuit. Any questions? No? Let's move on. Okay. And अब यहां पे एक अलग एरिया में हम घुस गए हैं। Now we are going on to special purpose PN junctions, एक अलग टाइप का काम करने वाले PN junctions. These are also called optoelectronic diodes. उसमें 3 डायोड खास देखेंगे हम। पहला तो फोटो डायोड, दूसरा लाइट एमिटिंग डायोड एंड तीसरा सोलर सेल। ओके, सो दीज आर ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसमें सर्वप्रथम हम बात करेंगे फोटो डायोड की। Before we understand the working, what is the principle of the photodiode? This photodiode converts, this is a PN junction, सारे PN junction ही है. This converts light energy into electrical energy. So this converts light energy into electrical energy. As a result, it is always kept in reverse bias mode. इसमें बायस वोल्टेज चाहिए बिल्कुल, सो रिवर्स बायस मोड में यूज किया जाता है। एंड देयर इज अ विंडो ऑन टॉप ऑफ इट, ये विंडो है यहां पे जिससे तुम्हारा लाइट आता है, ये विंडो है। ओके, ये वाला खुली जगह है जहां से लाइट एंटर कर सकता है और इस जंक्शन पे स्ट्राइक कर सकता है। ये P है, ये N है। रिवर्स बायस कैसा होता है श्रीमान? P टू नेगेटिव, N टू पॉजिटिव। और यहां पे मैंने एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है करंट फ्लो होने के लिए। अच्छा सर, वर्किंग समझा दो। समझा देते जी भाई। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, रिवर्स बायस के दरमियान जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है या कम? ज्यादा होता है ना, काफी बड़ा होता है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। व्हेन लाइट फोटॉन्स fall on this junction, fall on this diode, and these light photons have energy greater than band gap. Don't you agree? These light electrons, these light photons will provide energy that will break bonds. So bonds will break and electrons or holes form हो जाएंगे। सबसे पहली बात, when light falls on the window, when light of frequency nu such that H nu greater than band gap energy Eg falls on the junction, this energy bonds break and electrons and holes are formed. अब उस इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो फॉर्म हुए उनका क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स हुए, अभी इतना बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है जंक्शन पे, तो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस तो नहीं करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां रहेंगे और होल्स यहां रहेंगे।
and they will be accumulating at the end points of the photodiode. And because accumulation हो रहा है और क्योंकि रिवर्स बायस है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस लोड इस रेजिस्टर के जरिए निकलेंगे और बढ़िया करंट कंस्टिट्यूट करेंगे. These electrons and holes will move towards n side and p side respectively due to electric field at the junction, where they give rise to current called photocurrent. And thus ये लाइट एनर्जी जो पड़ी वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स में कन्वर्ट हुई और ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स करंट कंस्टिट्यूशन में काम आए और इस तरह लाइट एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस is the idea of a photodiode converting light energy into electrical energy. This is the symbol for a photodiode, standard PN junction जैसा ही, but उस पे लाइट आती हुई बताते हैं. बराबर. सो ये लाइट आती हुई बता रहे हैं. This is the symbol for a photodiode. And if I were to show you the characteristics, जितनी इंटेंसिटी लाइट की ज्यादा होगी श्रीमान, उतना फोटो करंट भी ज्यादा होगा. लेट मी शो दैट. कैन आई टेक दिस डायग्राम ऑफ? आई कैन डू दैट. अच्छा, मैं ये साइड मैं ये साइड करूं या ये साइड? अच्छा, एक छोटा सा डायग्राम है, ग्राफ है छोटा सा. सो लेट मी शो दैट टू यू. बिकॉज रिवर्स बायस है तो इट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ये V, ये I, एंड ये इंटेंसिटी 1, ये इंटेंसिटी 2, ये इंटेंसिटी 3. कैन यू सी जैसे जैसे एंड इंटेंसिटी 3 is greater than intensity 2 greater than intensity 1. जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना उतना करंट कंस्टिट्यूशन भी ज्यादा होगा. 1 में इंटेंसिटी कम है तो कम करंट है, उससे ज्यादा इंटेंसिटी 2 की है तो 2 का करंट ज्यादा है, उससे ज्यादा ये लाइट की इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात कर रहा हूं. क्योंकि जितनी लाइट ज्यादा इंटेंस होगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स पैदा होंगे और उतना बढ़िया करंट कंस्टिट्यूट होगा. So this is the idea of photodiode. Photodiode is used as a photo detector in various communication systems. It is used as a photo detector in optical communication systems. Optical fibers वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है. In various types of circuits you use it as a photo detector. Remember that it has always to be in reverse bias mode. ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है PN junction converting light energy to electrical energy. Look at it please. Okay, the second type of optoelectronic device is a light emitting diode famously known as LED. Okay, आपने LED के साथ तो काफी वो है आपका मेल मिलाप. जैसा फोटो डिटेक्टर का काम है ना उससे उल्टा करता है. क्या करता है? दिस डिवाइस, दिस डायोड कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. वाह, यू रिमेंबर फोटो डायोड कन्वर्टेड लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसका प्रिंसिपल उल्टा है, कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. सो इट इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस मोड. हाँ, ओके, into light energy. Okay, not light current, light energy. It is used in forward bias mode. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. एक्चुअली टेक्स्ट बुक में कोई डायग्राम दिया नहीं है, बट आई ट्राई टू ड्रॉ वन फॉर यू.
this is your n-type material, this is your p-type material, and फॉरवर्ड बायस में n टू नेगेटिव p टू पॉजिटिव, ये फॉरवर्ड बायस लग गया है. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट, अच्छा पहली बात मेरे को समझाओ तो, फॉरवर्ड बायस के दरमियान जंक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है या ज्यादा? कम. एज अ रिजल्ट करंट फ्लोज या नॉट फ्लोज? फ्लोज. सो ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस junction width, depletion region width is quite less, and electrons from n type, you know, यहां पे जो electrons है, they cross over into the p region, from n type go into p region, and holes from p type cross into n region. ये इलेक्ट्रॉन्स जो n से p में गए वो p के होल्स के साथ रिकंबाइन होंगे. दीज इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी कैरियर्स इन p टाइप, रिकंबाइन with the holes of the p type and energy is released. So when electrons from n type go into p type and they recombine with the holes in the p type, you know, energy will be released. You know, in normal semiconductors, this energy is released as heat. But in certain semiconductors, this energy is released as light. In most semiconductors, this energy comes out as heat. Most semiconductors, this energy is given out as heat. But in certain semiconductors, special semiconductors like gallium arsenide phosphide, but in some semiconductors, some materials like GaAs, GaAsP, etc., this energy is given out as light. Whoa, वाह वाह वाह. तो मस्त लाइट निकलती है, यहां से लाइट बाहर आती है. लवली. सो लाइट बाहर निकल रही है और अलग अलग सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स यूज करके अलग अलग कलर्स की लाइट मिल सकती है. रेड, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ये सब लाइट्स के साथ तो आप वाकिफ है. यू नो, अपने फेस्टिवल डेकोरेशंस में, तुम्हारे बाइक के पीछे के इंडिकेटर्स में, यहाँ तक कि कलर टेलीविजन्स में भी एलईडी का इस्तेमाल होता है. एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस में तो होता ही होता है. तुम्हारे रिमोट कंट्रोल में भी आगे जो होता है वो इंफ्रारेड एलईडी होता है, उसमें गैलियम आर्सेनाइड होता है, वो भी लाइट देता है. बट ये लाइट कैसी है? इंफ्रारेड, तुमको दिखाई नहीं देती. तो बाकी में GaAsP रेड कलर देता है. सो ये सारे बढ़िया बढ़िया कलर देते हैं हमको. यू कैन अंडरस्टैंड इट ऑल्सो इन दिस मैनर. अच्छा, इसका सिंबल कैसा है? सिंबल स्टैंडर्ड, इसमें लाइट बाहर की तरफ, बराबर. सो गिविंग आउट लाइट, दिस इज द आइडिया. मैं आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक से बाहर जाके थोड़ा समझाने की कोशिश करूं कि सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड में, मैं आपको बैंड थियरी से बताने की कोशिश करता हूं. कंसिडर दिस इलेक्ट्रॉन, दिस इज इन द वैलेंस बैंड. ये यहां कब जाएगा? जब इसको क्या मिलेगा? एनर्जी. Yes, sir. So when it receives energy, it goes from valence band to conduction band, becomes free. On the other hand, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में और जब वो वैलेंस बैंड के होल को भरने के लिए आ रहा है, तो डोंट यू अग्री, व्हेन दिस कम्स डाउन लाइक दिस,
energy will be given out. Ladies and gentlemen, is this understandable? Can you see this? जब वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करता है तो इट गोज इनटू कंडक्शन बैंड. On the other hand, if a conduction band electron comes down to fill hole in the valence band, energy will be released. This energy is this that what you are looking at. बराबर है. So it is used. LEDs are used in decorative lighting. Optical communication, remote detectors, burglar alarms, etc. इन सब में एलईडी का मस्त उपयोग होता है. और ये आइडिया एक्चुअली ये दिया नहीं है टेक्स्ट बुक में, पर मेरे को ये ज्यादा अच्छा लगता है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन हो, उसको एनर्जी मिले तो वो कंडक्शन बैंड में जाता है. तो अगर कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन हो और वो होल फिल करना चाहता है वैलेंस बैंड में, तो दिस एक्सेस एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं. सो दिस वाज अ लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी. एंड now going on to the last section, last part of this diode, which is called solar cell. भाई let me tell you, जो फोटो डायोड का प्रिंसिपल है ना, सोलर सेल का भी वही प्रिंसिपल है, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं. सोलर सेल आपके घरों के ऊपर भी लगा होगा, आजकल तो बहुत सारे घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगे होते हैं. सो दिस सोलर पैनल, दिस सोलर सेल, सोलर पैनल जो है वो सोलर सेल से बना होता है. This also converts light energy into electrical energy, same. तो फिर सर इसको फोटो डायोड क्यों नहीं बोलते? क्योंकि फोटो डायोड में और सोलर सेल में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि फोटो डायोड रिक्वायर्स बायस वोल्टेज. फोटो डायोड को हमको रिवर्स बायस देना पड़ता है. सोलर सेल डज नॉट रिक्वायर एनी बायस वोल्टेज, जेंटलमैन. सो दिस ऑल्सो कन्वर्ट्स, दिस डिवाइस, दिस डायोड converts light energy into electrical energy, same like a photodiode, but it does not require any bias voltage. Prime difference. No, does not require any bias voltage. जबरदस्त सर, तो कैसे करेंगे? Okay, let me try to draw something for you. मेरे पास एक बड़ा सा पी रीजन है, उसके ऊपर एक छोटा सा एन रीजन, काफी छोटा, मैंने बनाया है. डायग्राम डेल्ला वेरिटा. कैसा है? कैसा है भाई, कैसा है? देखने जैसा है. ये साइड व्यू है इसका. कोशिश तो अच्छे डायग्राम बनाने की है, पर क्या बन जाएगा इसका पता नहीं चल पाएगा. आएगा गंदा, गंदा पीपा. क्या लाइन पड़ गई बरोबर. ओके, तो ये जो है ना, ये एन है और ये नीचे है पी, और ये पी के नीचे मैंने मेटल लगाया हुआ है. दिस इज अ मेटल कॉन्टैक्ट. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बैक कॉन्टैक्ट. इसको कहते हैं इंग्लिश में बैक कॉन्टैक्ट, मेटल बैक कॉन्टैक्ट. और इसके ऊपर मैंने मेटल के फिंगर्स लगाए हैं. चार्ज कैरियर्स अब्सॉर्ब करने के लिए. ओके, एंड यहां से ये बाहर निकलता है. ये पूरा मेटल है. सो दिस सर्व्स एज योर फ्रंट कॉन्टैक्ट. सो ये जो मेटल इलेक्ट्रोड्स है ये फ्रंट कॉन्टैक्ट है, और ये जो तुम्हारा नीचे मेटल है दैट इज योर बैक कॉन्टैक्ट. लाइट यहां पड़ती है इसके ऊपर से.
और मैंने इस तरह मेटल्स लगाए हैं कि नियरली 85% ऑफ द एरिया इज फ्री, बराबर। ये मेटल कॉन्टैक्ट्स जो ऊपर है और जो नीचे है वो सिर्फ चार्ज कैरियर्स को एक्यूमुलेट करने के लिए लगाया गया है। जेंटलमैन, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो कॉन्टैक्ट्स है एट द बैक एंड एट द फ्रंट, they are meant just to accumulate charge carriers. If I were to show you this is the top view, this is the side view. This is N, this is P. ये तुम्हारे ऊपर 4 फिंगर्स 1 2 3 4 और ये तुम्हारा नीचे मेटल का बैक कॉन्टैक्ट। भाई, इज द डायग्राम क्लियर? लेडीज एंड जेंटलमैन, डायग्राम क्लियर है ये एक्चुअली? ओके, सो यू नो मेरे पास एक 300 माइक्रोमीटर का पी रीजन है थिकनेस का, मैं उस पे 0.3 माइक्रोमीटर का एन डालता हूं और एक एन रीजन बना देता हूं, जिसकी वजह से एक पीएन जंक्शन बन गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये फिंगर्स बरोबर है क्या? मुझे क्यों टेढ़े लग रहे हैं? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, और लाइट पड़ती है इसके ऊपर। सो नियरली 85% ऑफ एरिया ऑन फ्रंट साइड, फ्रंट एंड रीजन is kept free for light to be incident. ओके, तो माशाअल्लाह लाइट इंसिडेंट हुई, एंड जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है बॉन्ड टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन रीजन में रहते हैं, होल्स जो हैं वो पी रीजन में रहते हैं। व्हेन लाइट ऑफ एनर्जी h nu which is greater than Eg falls on cell, solar cell, bonds break and electron hole pairs are formed. पर हमेशा एक इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इस साइड जाएंगे और ये फ्रंट कांटेक्ट पे कलेक्ट होंगे, और ये होल्स जो है वो बैक कांटेक्ट पे कलेक्ट होंगे। These electrons, जब बाहर का कोई सर्किट कनेक्टेड नहीं है, these electrons will accumulate on the front contact, क्योंकि और कहीं जाने का सिचुएशन नहीं है, and holes will accumulate on the back contact, thus giving rise to a potential difference between the N and the P region on the back contact, thus giving rise to a photovoltage, a potential difference between the two terminals. अगर तुमने बाहर कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है तो ये इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स ऐसे ही रहेंगे, एक्यूमुलेटेड ही रहेंगे, और जैसे ही तुम कोई लोड कनेक्ट करोगे ना तो current will start flowing. Can I take this off now, people? Can I take this diagram and all this off? Okay. So, in absence of load, for example, let me show you. Suppose ये तुम्हारा P है, ये N है, और तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में कनेक्टेड है, होल्स पी साइड में। अगर तुम्हारे पास कोई लोड नहीं, अगर तुमने लोड कनेक्ट नहीं किया तो ये दोनों इधर ही एक्यूमुलेटेड रहेंगे, पर जैसे ही तुमने लोड रेजिस्टर लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लोइंग एंड करंट विल बी कंस्टिट्यूटेड। व्हेन लोड RL is connected, then current will flow, these charge carriers will flow, current will flow through it. So कोई बायस वोल्टेज की आवश्यकता नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड रहेंगे। दिन के टाइम में जब लाइट पड़ती जाएगी तो ये एक्यूमुलेट होते जाएंगे इधर और इधर, एंड रात के टाइम में जब लाइट नहीं होगी तो ये जो स्टोर्ड है ना ये सारे फ्लो होंगे
तो रात में इस चीज को इस्तेमाल ये लोड चलाने के लिए किया जा सकता है. सो सोलर सेल्स आर मेनली यूज्ड इन सैटेलाइट्स. आजकल तो अपने घरों के ऊपर भी सोलर पैनल्स लगी होती हैं, बहुत सारे सोलर सेल्स लगे होते हैं सीरीज में, तो वो भी यूज होता है. एंड बहुत बढ़िया होता है, कॉस्ट इफेक्टिव वैसे माना जा रहा है, बट इंस्टॉलेशन कॉस्ट काफी हाई होता है, इसका मेंटेनेंस भी थोड़ा सा करना पड़ता है. आई एम श्योर जिन जिन के घरों के ऊपर सोलर पैनल लगे हैं उनको अंदाजा है कि इंस्टॉलेशन का कॉस्ट काफी आता है. ओके, सो अ सोलर सेल, द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सोलर सेल, तुम कोई भी मटेरियल को सोलर सेल की तरह यूज करने के लिए, सोलर सेल में यूज करने के लिए क्या क्या तुम्हारे वो आइडिया है? लेस एनर्जी गैप, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, भले एनर्जी गैप कम हो पर वो एब्जॉर्ब भी कम कर रहा है, तो अपने फायदे का नहीं है. हमको एनर्जी गैप भी कम चाहिए और ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा चाहिए. कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट कितना है वो सब देखना पड़ता है इन द रिक्वायरमेंट फॉर अ सोलर सेल. सो वेरी वेरी फ्यू मटेरियल्स आर यूज, लाइक सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. कॉपर InS2 वो भी यूज होता है सोलर सेल के लिए. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर सोलर सेल. सोलर सेल का आपको मैं डायग्राम सिंबल दिखा दूं. मैं सोलर सेल का सिंबल आपको दिखाता हूं. आप पहले इस चीज को देख लीजिए. इसमें कोई शक है तो मेरे को बताइए प्लीज. ओके, सो रिक्वायरमेंट्स में लेस एनर्जी गैप, हाई ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन, कॉस्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह वगैरह होता है. अच्छा, अगर मैं आपको IV कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं इसका, सो ये वोल्टेज है, ये करंट है. जब मैंने लोड कनेक्ट नहीं किया है तो वोल्टेज इज मैक्सिमम. दिस ओपन सर्किट वोल्टेज. ओपन सर्किट मतलब व्हेन करंट इज नॉट फ्लोइंग. फिर जैसे ही तुम लोड लगाते हो, करंट स्टार्ट फ्लोइंग, एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस द करंट विल चेंज, एंड दिस इज शॉर्ट सर्किट करंट. मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस 0 हो तो मैक्सिमम करंट कितना मिलेगा? दिस इज योर शॉर्ट सर्किट करंट. सो VOC is open circuit voltage, no load, and ISC is short circuit current when RL is taken to be 0 ohm. So in short, this is the maximum current that can flow, that the solar cell can give, and this is the maximum EMF that the solar cell can produce. So that is why, because sir, why have we drawn it in the fourth quadrant? Because solar cell current खाता नहीं है, solar cell load को current देता है. That is why we have drawn it in the fourth quadrant. Okay, is this agreeable people? कोई शक? Alright, आपको डायग्राम दिखा रहा था ना, सिंबल दिखा रहा था सोलर सेल का. ये सोलर सेल का सिंबल है. दिस इज N, दिस इज P. ओके, देख लीजिए इसको. इलस्ट्रेशन 4.2 लाया हूं आपके लिए, आपकी टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन 4.2 क्या कहता है? लेट अस सी. सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 into 10 raised to 28 atoms per meter cube. So 5 into 10 raised to 28 atoms है सिलिकॉन के per meter cube. It is doped by 1 part per million. So 1 part per million concentration of pentavalent arsenic. Okay, calculate the number of electrons and holes. Okay, now ये जो 5 into 10 raised to 28 है, ये आपका हमको दिया नहीं है कि Ni कितना है, पर Ni अपने को यहां पता होना चाहिए. Here इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इज 10 raised to 16 पर मीटर क्यूब. ये आपको पता होना चाहिए. नाउ आई विल गो इनटू इट. सबसे पहली बात, 1 पार्ट पर मिलियन ऑफ आर्सेनिक. मिलियन मतलब 10 raised to 6, मतलब 1 आर्सेनिक एटम
we have added in 10 raised to 6 silicon atoms. 10 लाख सिलिकॉन एटम के लिए मैंने एक आर्सेनिक डाला. सो हाउ मेनी arsenic atoms for 5 into 10 raised to 28 silicon atoms? So number of arsenic atoms added per meter cube added is, so arsenic का नंबर फाइंड कर रहा हूं मैं. 5 into 10 raised to 28 into 1 divided by 10 raised to 6. तो number of arsenic atoms कितने हुए? 5 into 10 raised to 22 per meter cube. Well, here I think you should remember that each arsenic atom gives one free electron. बराबर? Each arsenic atom donates one free electron. Therefore, number of free electrons per meter cube, जिसे हम Ne कहेंगे, isn't it same as number of arsenic atoms? So 5 into 10 raised to 22, wow, per meter cube. मिल गया मुझे number of free electrons. Now number of holes चाहिए. Ni square is NeNH. So NH is Ni square by Ne. Ni is how much? 10 raised to 16. So 10 raised to 16 the whole square over 5 into 10 raised to 22. Well, I see this. जी. सर टेक्स्ट बुक में 1.5 to 10 raised to 16 दिया है. Oh, okay, ठीक है. Let's take 1.5. करीबन 10 raised to 16 है, तो 1.5 into 10 raised to 16. Okay. 1.5 का स्क्वायर 2.25 into 10 raised to 32 और ये 5 into 10 raised to 22. Now 2.25 by 5. Can someone divide and find me an answer? 0.45. 0.45. 32 minus 22 is 10, and as a result NH is 4.5 into 10 raised to 9 atoms per holes per meter cube. Kindly check the answer. Okay, I am now looking at illustration number 4. Illustration 4 के लिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, so मैं ग्राफ बना देता हूं. 3-4 पेज पीछे ही है, आई एम श्योर आप देख रहे हैं. So okay, let me first draw the graph. It's a IV characteristic of a PN junction diode. Okay, forward characteristics. This is like 10, this is 15, this is 20. Okay, और यहाँ पे ये है 0.5 और ये है 0.8. ये है 0.8 एंड ये है -10 वोल्ट और करंट कितना है 1 माइक्रो एम्पियर. ओके, हम रेडी हैं. क्या कहा है उन्होंने? द VI characteristics of a silicon diode is shown. Calculate the resistance at ID is equal to 15 milliampere. ये ID है 15 milliampere and VD is -10 volt. Okay, R is how much? Sorry, ये 15 milliamp है. अब we know resistance is delta V by delta I. तो ये 15 मिली एम्पियर को बीच में रख करके मैं उसके दो एंड पॉइंट्स लेता हूं जहां पे ये सीधा ग्राफ बना रहा है. तो ये सीधी लाइन बना रहा है, उसके दो एंड पॉइंट्स लेता हूं. एक तो ये है 20 मिली एम्पियर वाला जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 0.8 और दूसरा है 10 जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 0.5. नाउ फ्रॉम द ग्राफ
गैप नहीं, ग्राफ. V1 is 0.5 volt, I1 is 10 milliamp, V2 is 0.8 volt. मैं वो लाइन चूज कर रहा हूं, ये दो एंड पॉइंट्स चूज किए हैं. I2 is 20 milliampere. Okay, so resistance R is delta V by delta I, which is V2 minus V1 over I2 minus I1. V2 है मेरे पास 0.8, ये रहा 0.8 minus 0.5 over I2 20 मिली minus 10 मिली, 20 minus 10 milliamp, ये वोल्ट में है. 0.8 minus 0.5 is 0.3 and 20 minus 10 is 10 मिली का 10 raised to minus 3 लगा देते हैं भाई. 10 into 10 raised to minus 3 is 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 2 को ऊपर चढ़ाऊंगा मैं तो 0.3 into 10 raised to 2, isn't that 30 ohm? Check please. ये 0.5 और 0.7, अच्छा उन्होंने दो एंड पॉइंट्स को, ये गड़बड़ है. अरे 10 पे 0.5 नहीं है, मैं थोड़ा बहक गया था. 10 पे 0.7 है, 0.5 तो कहीं यहां बीच में. ओके, उन्होंने 0.7 दिखाया नहीं है डायग्राम में, याद रखिएगा. तो गलती से मिस्टेक ना हो जाए आपकी. मैं डायग्राम देख के ये सोचा कि ये 0.5 है. सो दिस इज 0.7. 0.8 minus 0.7 is 0.1. 0.1 into 100 is 10 ohm. वो अगर ये 0.5 रखा होता तो 30 ohm आता, नॉट अ बिग इशू. नाउ सेकंड में फाइंड द रेजिस्टेंस एट V is equal to minus 10 volt. भाई minus 10 volt पे करंट की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर. सो रेजिस्टेंस इज डेल्टा V by delta I, which is V by I. V कितना है? 10 वोल्ट एंड I कितना है? 1 माइक्रो एम्प. ओह, दैट्स 1 into 10 raised to minus 6. तो ये 10 raised to minus 6 ऊपर चढ़ गया. That will give you 10 raised to 7 ohm. My God, check the answer please. So 10 plus, that's 10 into 10 raised to 6, that's 1 plus 6, 10 raised to 7 ohm is your answer for this diagram. Is this agreeable? Can you check? Okay. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं. मैं देखने जा रहा हूं न्यूमेरिकल 14.6. कैन यू सी न्यूमेरिकल 14.6? देखो तो क्या कहता है. क्या इसके बारे में हमने बात देखी थी? इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, हाफ वेव रेक्टिफायर है, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी फॉर अ फुल वेव रेक्टिफायर फॉर द सेम इनपुट? याद है फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर खत्म किया तब मैंने कहा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी सेम एज एसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी विच इज 50 हर्ट्ज, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर का फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस. सो फुल वेव रेक्टिफायर का फ्रीक्वेंसी विल बी 100 हर्ट्ज, हाफ वेव रेक्टिफायर का विल बी 50 हर्ट्ज. एंड 7 करने जा रहा हूं. A PN photodiode is fabricated from a semiconductor with band gap 2.8. अच्छा, तो EG दिया हुआ है. It is EG sum. पहले डेटा लिख लेते हैं फिर बात करते हैं. So okay, so 14.7 EG कितना है? 2.8 EV. And can it detect a wavelength of 6000 nanometer? 6000 nanometer. Will it detect? अब ये बात किस आइडिया पे आधारित है भाई? फॉर अ photodiode the light will only be detected if H nu is greater than EG. So for a photodiode, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई. For a photodiode, it will detect light only if H nu is greater than or equal to EG. तो EG तो है मेरे पास 2.8 eV. H nu फाइंड कर लेते हैं. So energy of the photon, I'm sure everyone knows,
एनर्जी ऑफ द फोटोन इज एच नू, ये रहा। एंड अगर तुमको ईवी में चाहिए तो एच नू बाई ई, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34, नू इज 6000 nanometer divided by E की value 1.6 into 10 raised to minus 19. This will be in EV. So if somebody can give me minus 34 plus 3 is minus 31, minus 31 minus 9 is minus 40, minus 40 plus 19, minus 40 plus 19 कितना होता है जी? Minus 21. Is this agreeable? Minus 21. Is this okay? H नो जूल में आएगा आंसर, और मैंने ईवी लाने के लिए 1.6 into 10 to minus 19 डिवाइड किया। आई एम गोइंग ओके राइट? हाँ ठीक जा रहा। एंड ये तो दिख रहा है यहाँ से, ये 2.8 ईवी है और ये कुछ 10 raised to minus 21 ईवी है, तो देयर इज नो चांस कि वो डिटेक्ट करेगा। फिर भी फाइंड आउट कर लेते हैं आंसर फाइनल कितना है। 6.63 into 6 divided by 1.6, 24.84. 24.84. So H nu is 2.48 into 10 raised to minus 20 EV. भाई ये कहाँ and 2.8 EV कहाँ? So as H nu is less than EG, so this light will not be detected. Will not be detected. Okay, so this is a very important idea. तो ये हमने देख लिया। आगे चलते हैं, एक आध न्यूमेरिकल करना है या एंड ऑफ द डे प्ले करना है अभी? I think that is very easy. End of the day's play. Okay, so in the next lecture we will look at gates. We are ending this session here. We'll look at gates and we shall end this chapter. So see you next time. Take care. Bye bye.